In the series of Rasaushadhi Prabhos, after clinical applications of Kankaloha Bhasma, today we are going to see clinical applications of Tamra Bhasma. For this session, we have an eminent speaker, Dr. Chintan Sangani. He has completed his BAMS from KG Mittal Ayurved College, Mumbai in 2010 and MD in Rasashastra and Rasashastra from R.A. Poddar Medical College, Mumbai in 2013. He had stood first in MD entrance exam in entire Maharashtra. He has special proficiency in skin and allergic diseases. He has worked on academic and physicochemical properties of Tamra Bhasma. In fact, his thesis topic was Tamra Bhasma. Presently, he is working at Orthovet Hospital, Dombivli. With this brief introduction, I request sir to start his session. Thank you. Yes, the lecture will begin in 5 minutes. Dr. Chinmay? Dr. Chinmay? Hello, Dr. Chinmay?
Hello. Is voice audible now? Yes, doctor. Yeah. Okay. Good morning to one and all. In this series of Rasaushadhi Prabodh, after clinical applications of Kanta Loha Bhasma, today we are going to see clinical applications of Tamra Bhasma. For this session, we have an eminent speaker, Dr. Chintan Sangani. He has completed his BAMS from KG Mittal Ayurved College, Mumbai in 2010 and MD in Rasashastra from R.A. Poddar Medical College in 2013. He has stood first in MD entrance exam in entire Maharashtra. He has special proficiency in skin and allergic diseases. He has worked on academic and physico-chemical properties of Tamra Bhasma as well as Laghu Malini Vasanta. In fact, his thesis topic was at MD Tamra Bhasma. He has attended many workshops and delivered many lectures in national and international seminars. Hello. Hello. Doctor, am I audible? Yeah. Yes, you are audible. Should we start? Okay. Yeah. Hello. Good morning to one and all. Sorry for technical error. In this series of Rasaushadhi Prabodh, after clinical applications of Kanta Loha Bhasma, today we are going to see clinical applications of Tamra Bhasma. We have an eminent speaker, Dr. Chintan Sangani, for this session. He has completed his BAMS from KG Mittal Ayurved College, Mumbai in 2010 and MD from in Rasashastra from R.A. Poddar Medical College in 2013.
stood first in MD entrance exam in entire Maharashtra. He has special proficiency in skin and allergic diseases. He has worked on academic and physical properties of Tamra and Laghu Malini Vasanta as well. In fact, his thesis topic was Tamra he has attended many workshops and delivered many lectures in national and international symposiums. Currently, he is working in Orthoved Hospital as Ayurvedic dermatologist. With this brief introduction, I request sir to start his session. Thank you. Good morning, everyone, and sorry for the delay. We will directly start with the topic ताम्र भस्म. भस्म के बारे में जब भी हम सोचते हैं और भस्म को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रोगग्न
होती है तो बहुत बार रस ग्रंथों में उसकी रोगग्नता अलग अलग जॉनर में यूज की गई होती है, अलग अलग क्या कहते हैं कि अलग अलग व्याधि के क्षेत्र में यूज की गई होती है। तो हमें बहुत बार ऐसे समझते नहीं कि इसको एक्चुअली हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, और इसीलिए अलग अलग भस्मों की जो शैलेय लर्निंग एकेडमी और डॉक्टर चिन्मय फुंडेकर द्वारा यह शुरू की गई है, वह काफी इनोवेटिव और काफी कुछ सीखने के लिए ओपन ऐसी ये सीरीज है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मुझे बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए भी वैद्य चिन्मय फुंडेकर, इनका मैं आभारी हूं। हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इतने सारे केवल खरलीय रसायन है, यह जो खरलीय रसायन है उसमें बट ऑब्वियस कॉमन यही चीज होगी कि इस सभी में का सूत्र यानी ये सभी का जो कॉमन फैक्टर है वह है ताम्रभस्म, यानी यह सभी में ताम्रभस्म प्रेजेंट है। तो इतने सारे एस्पेक्ट की अलग अलग कल्पों में ताम्रभस्म है, तो ताम्रभस्म का निश्चित रोल कैसे जाने, ताम्रभस्म किस लिए ग्रंथकर्ता ने यह सभी कल्पों में इस्तेमाल किया है, ताम्रभस्म को
इस्तेमाल करने से शरीर में क्या चेंजेस अपेक्षित है, यह सब बात काफी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि एक कल्प का दूसरे कल्प के साथ संबंध बहुत ज्यादा नहीं होता है। उदाहरण तो लीला विलास रस, यह अम्लपित्त रोगाधिकार पे है, तो कालकूट रस ये ज्वर रोगाधिकार पे है, तो अर्धांगवातारी रस, एकांगवीर रस, यह सब मज्जावह स्रोत नर्व रिलेटेड डिजीज में इसका उपयोग होता है। शीत पित्त प्रभंजन रस जैसे रस है वो त्वचा रोग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यह सभी का जो ये मिश्रण है, इसमें यह सभी का मिश्रण है, तो इसमें हम ताम्र भस्म का इस्तेमाल या ताम्र भस्म किस वजह से ग्रंथकर्ता ने इस्तेमाल किया है, अगर यह हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमें धीरे धीरे ताम्र भस्म के आमयिक प्रयोग के बारे में हम सोचने लगेंगे, और वह आमयिक प्रयोग के बाद हम हमारी प्रैक्टिस में एफिशिएंटली ताम्र भस्म का इस्तेमाल यह कर सकते हैं। तो इसीलिए यह जो कल्पों का गुलदस्ता है, स्पेसिफिकली यहाँ रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ खरलीय कल्प लिए है। यह जो खरलीय कल्प में जिसमें एक ताम्र भस्म यह एक कंटेंट है, तो वह ताम्र भस्म को समझने के लिए हम आगे जब भी जाते हैं तो उसको एक सेक्टर में या एक सेक्शन में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वह है प्राणवह स्रोतस अनुसार। तो निम्नलिखित अपूर्व मालिनी रस, कफकुठार रस, कल्याण सुंदर रस, राजमृकांक रस और बालज्वरांकुश रस, यह जो सभी बात है वह सभी कल्प प्राणवह स्रोतस के और प्राणवह स्रोतस में जाने वाले प्राणवह स्रोतस पर कार्यकारी ऐसे कल्प है जिसमें ताम्र भस्म प्रेजेंट है। तो यह सभी कल्पों का हम अगर अभ्यास करेंगे तो उसमें अपूर्व मालिनी रस है, कल्याण सुंदर रस है और राजमृगांक रस है। यह तीनों कल्प ये बल्य कल्प है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकत देने वाले कल्प है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुख्यतः अवलंबक कफ का स्थान है, वह अवलंबक कफ को बलवान करने एज वेल एज वहां पे जो दूषित कफ है उसको निकालने के लिए यह कल्पों का इस्तेमाल होता है। कफकुटार रस और बालज्वरांकुश रस, यह दोनों थोड़े शोधन टाइप कल्प में है। तो यह जो कल्प में ताम्र भस्म इस्तेमाल हुआ है, तो ताम्र भस्म का जो लेखन गुण है, ताम्र भस्म का जो कफघ्न ऐसा जो गुण है वह, और ताम्र भस्म का जो शोषण गुण है, यह यहाँ पे इस्तेमाल करके प्राणवह स्रोतस पर इस्तेमाल करने वाला यह एक ताम्र भस्म ऐसा हो सकता है। तो जब भी कफ का लेखन करना है, परंतु यह तीनों हमने कल्प देखे वो बल्य कल्प है। तो दूसरी महत्व की बात इसमें ये ऐसी है कि ताम्र भस्म में को लेखन के लिए इस्तेमाल करने पर भी बल क्षय नहीं होता है, या फिर बल वह इतना तीक्ष्ण द्रव्य नहीं है। जनरली हमारे माइंड में ऐसा आता है कि ताम्र भस्म ये तीक्ष्ण द्रव्य है, पर वह इतना तीक्ष्ण द्रव्य नहीं है। वह सोमल कल्प यानी हरताल है या फिर मनशील है, उसके जितना तीक्ष्ण तीव्र कल्प नहीं है। ताम्र भस्म ये थोड़ा कंपेयर टू रसमाणिक्य, कंपेयर टू हरताल, कंपेयर टू समीरपन्न थोड़ा मृदु है, पर कंपेयर टू प्रवाल, कंपेयर टू मुक्ता, कंपेयर टू क्या कहते हैं हम यशद, इससे थोड़ा वो स्ट्रांग है, यानी वो मिड रेंज में है। यानी बल टिकाकर कफ का निष्कासन करना यह ताम्र भस्म की स्पेशलिटी है, और इसीलिए यहाँ पे ताम्र भस्म यूज किया है। इसलिए बहुत बार हम यदि कफघ्न ऐसे हमें अपेक्षित है, पर पेशेंट को काफी दिनों से खाती है और फिर भी हमें उसको कफघ्न मेडिसिन देनी है, परंतु उसका बल टिकाना है, तो ऐसे समय पर सीतोफलादि चूर्ण में थोड़ा ताम्र भस्म आप निश्चित इस्तेमाल करें और पेशेंट को दे, तो यह उपयुक्त प्राणवह स्रोतस में लेखन करने के लिए, पर बल को मेंटेन करने के लिए यह काफी महत्व की बात है। वह प्रॉपर्टी ताम्र भस्म में दिखती है, ताम्र भस्म के साथ हम जा सकते हैं। दूसरी महत्व का स्रोतस
हम अगर ताम्र भस्म के साथ ताम्र के कल्पों के लिए देखेंगे तो दूसरा महत्व का स्रोत है वो है अन्नवह स्रोत। हम सभी को पता है कि ताम्र यह अग्निवर्धक ऐसा भस्म है। ताम्र भस्म की जो प्रॉपर्टी हम आगे उसमें देखने वाले हैं तो वह उसमें ताम्र भस्म यह अन्नवह स्रोत में अग्निवर्धन का काम यह मुख्य करता है। लीला विलास रस, दूतशेखर रस इनका मुख्य यह अम्ल पित्त है। तो अन्नवह स्रोत में साम पित्त का प्रादुर्भाव जब हमें दिखता है, साम पित्त के जब लक्षण दिखते हैं तभी ताम्र भस्म बिना सोचे हमने इस्तेमाल किया तो भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो साम पित्त के जो लक्षण है दुर्गंधिम, हरितम, श्यावम, पित्तम, अम्लम, घनम, गुरु, अम्लिका, कंठरुद्दाह, पित्तम, सामम विनिर्दिशे। यानी ऐसे समय पर अन्नवह स्रोत में जब हमें अलग अलग कल्पों को इस्तेमाल करना है या फिर हमने हमारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि जिसमें कामदूधा रस है, जिसमें प्रवाड़ है, जिसमें जष्टि मधु है, जिसमें आमलकी है, ऐसे शमन कल्प से बहुत बार अम्ल पित्त ट्रीट नहीं होता है क्योंकि वो साम पित्त का पाचन यह आवश्यक है। और साम पित्त के पाचन के लिए भृंगराज जैसी दवाई है, साम पित्त के पाचन के लिए शुंठी जैसी दवाई है और साम पित्त के पाचन के लिए ताम्र भस्म यह इस्तेमाल में आता है। यानी पित्त के सामता जब हमें रुग्ण में दिखाई देती है, जब हम पेशेंट में देखते हैं तभी हमने उसमें ताम्र भस्म का इस्तेमाल यह अन्नवह स्रोत रिलेटेड बहुत सारे व्याधि में इंक्लूडिंग अर्श, इंक्लूडिंग ग्रहणी, यह सभी व्याधि में हमें ताम्र के गुण यह उपयोगी आ सकते हैं। अभी हम ग्रॉसली बाइफरकेट कर रहे हैं कि कौन से स्रोत पर ताम्र भस्म का हमने विचार करना चाहिए। ताम्र भस्म का रोल हमें दिखाई देता है, अनुभव के तौर पे दिखाई देता है और प्रैक्टिकली हमें दिखाई देता है। पर जब भी हमने हमारा कॉम्बिनेशन बनाना हो ताम्र भस्म के साथ तभी हम किस स्रोत पर ताम्र भस्म है यह अगर हमारा अभ्यास रेडी हो, यह अगर हमने सोचा हो तो हम इजीली वह ताम्र भस्म को अच्छी तरह जुडिशियसली यूज कर सकते हैं। अभी तक हमारे इसमें आया है उसमें हमने 2 स्रोत के बारे में स्पेसिफिकली देखा। प्राणवह स्रोत में लेखन और प्राणवह पर जाने वाले कल्पों के साथ ताम्र भस्म का इस्तेमाल निश्चित करें, पर उसमें डिग्री 2 ऐसा है कि बहुत ज्यादा सूखा खांसी रहेगा तो नहीं करना, पर कफ का लेखन अपेक्षित है, बल मेंटेन करना अपेक्षित है। ऐसे समय पर निश्चित ताम्र भस्म का उपयोग हम कर सकते हैं। और अन्नवह स्रोत में हमने देखा साम पित्त पाचनार्थ, दैट इज द ओनली सिंगल वर्ड दैट वी कैन यूज व्हाइल यूजिंग ताम्र भस्म। वेरी इंपॉर्टेंट केस। यह देखते हैं रसवह स्रोत में जब भी हम देखते हैं तो ताम्र भस्म के कल्प है वो काफी ज्यादा है। मुख्यतः ज्वर, गलगंड, पांडु, हृदय, सुतिका, ऐसे सभी स्रोत पर सभी विविध व्याधि रसवह स्रोत की व्याधि में ताम्र के कल्प मौजूद है, ताम्र यह मौजूद है। इसीलिए ताम्र यह उत्तम रसपाचक ऐसा यह ताम्र भस्म है, रसगामी है। और साथ में यह इसमें 2-3 ऐसे है कि जो जीर्ण ज्वर के कल्प है वह जीर्ण ज्वर के कल्प में भी ताम्र का इस्तेमाल अच्छा होता है। यानी ताम्र यह दोषपाचनार्थ, परंतु कर्षण यह ताम्र का गुण ये बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता या फिर बहुत ज्यादा नहीं है। वो आजू बाजू की सिस्टम जैसे मेंटेन करके जैसे गुरु जी यह जीर्ण है वैसे ही ताम्र भस्म यह जीर्ण ज्वरग्न है। जीर्ण ज्वर में कभी भी इस्तेमाल करने को सोचे तो हमारे कॉम्बिनेशन में एखादा भस्म यह ताम्र भस्म हो सकता है। रसवह स्रोत में हमें पाचन 1+ अपेक्षित है, बल मेंटेन करना और स्रोतोवरोधों से होने वाला वात प्रकोप इसको कम करना है। तो स्रोतोवरोध जनित वात प्रकोप कम करने में ताम्र भस्म का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमें पूरी बनानी है तो बहुत बार
हम ज्वरग्न यानी त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ अल्प मात्रा में ताम्र भस्म और मुस्ता और पर्पण ऐसा अगर हम खल के देंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। और इसीलिए ताम्र भस्म यह रसवह स्रोत को फोकस करके वह काम करता है और इसमें अलग अलग वेरिएंट, अलग हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन यह दिखाई पड़ते हैं। और वह दिखाई देने के बाद इसीलिए ताम्र भस्म का विचार जब भी हम रसवह स्रोत व्याधि ट्रीट करते हैं तभी एकल द्रव्य के तौर पे या ताम्र भस्म का कोई कल्प वह इस्तेमाल हम निश्चित कर सकते हैं। ताम्र भस्म का मेन फोकस या फिर ऐसे कहते हैं कि मेन की कहीं पे अगर ताम्र भस्म जाता है तो वह है रक्तवह स्रोतस के मूल स्थान पर, यानी यकृत मूलम प्लीहाच ऐसा जो है उसमें यकृत पे कार्यकारी तो ताम्र का यह हमें सभी को पता है। तो रक्तवह स्रोतस के जो व्याधि है उसमें मुख्यतः स्रोतोवरोध अति प्रवृत्ति संगोवा तीराणाम ग्रंथयोपिवा, जो ये तीराणाम ग्रंथयोपिवा की वजह से अगर वो स्रोतस का रक्तवह स्रोतस का मुख्यतः अवरोध होता है तो उसमें ताम्र भस्म यह काफी अच्छा इस्तेमाल होता है। तो ताम्र भस्म का हमने ऐसे समय पे इस्तेमाल करना यह संयुक्तिक है, यह रिजल्ट देने वाला है। तो इसलिए हमने ताम्र भस्म को किस दृष्टि से इस्तेमाल करना यह बहुत महत्व की बात हमारे विषय में यह होनी चाहिए। इसीलिए हम अलग अलग कल्पों में ऐसे ताम्र भस्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और महत्व की यह बात है कि ताम्र भस्म यह मज्जावह स्रोतस में भी काफी अच्छा काम देता है। यह जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मज्जावह स्रोतस पे जाने वाला अर्धांग वातारी, एकांगवीर और मज्जावह स्रोतस से संबंधित स्मृति यह जो कार्य है वो स्मृति शास्त्र यह सभी में ताम्र भस्म का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए ताम्र भस्म का यह गामित्व, यह मज्जावह स्रोतस यह भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। इसीलिए जब भी हमने मुख्यतः पैरालिसिस या ऐसे पेशेंट है जिसमें मेन अटैक आके गया है, मेनली इंफाक्ट आके गया है और फिर वीकनेस है, तो यह सभी में उत्तेजनार्थ और वहां पे पहुंचाने के लिए ताम्र भस्म का इस्तेमाल हमने निश्चित रूप में करना चाहिए। यह सभी बातों का इन्फरेंस ऐसे ही निकलता है कि ताम्र भस्म यह मेनली 5 स्रोतस पे मुख्यतः उसका कार्य है, जिसमें प्राणवह स्रोतस है, दूसरा अन्नवह स्रोतस है, तीसरा रसवह स्रोतस है, चौथा रक्तवह स्रोतस है और 5वां मज्जावह स्रोतस है। अस्थिवह स्रोतस हो या फिर शुक्रवह स्रोतस हो, मेदवह स्रोतस हो, तो जनरली ताम्र के कल्प दिखाई नहीं देते। स्थौल्य पे ताम्र के कल्प बहुत कम है, यानी स्थौल्य ये हमें तुरंत ताम्र भस्म के विषय में ध्यान में आने वाला कल्प यह होता है, पर स्थौल्य संबंधित कल्पों में ताम्र भस्म का उपयोग काफी कम किया गया है। एक शायद वड़वानल रस है, बाकी कोई मेरे ध्यान में नहीं आया है। तो इसीलिए ताम्र का ये मांस, मेद, अस्थि, मूत्र, पुरुष यह सब पे काफी कम रोल है। इसीलिए हम जब भी हमारे कॉम्बिनेशन हमने बनाने हैं ताम्र भस्म के साथ, तो ये अगर हम 5 स्रोतस को ध्यान में रखते हैं और यह 5 स्रोतस के साथ हम अगर ताम्र भस्म को रिलेट करते हैं तो हमें वह इस्तेमाल करने की एक्यूरेसी यह ज्यादा से ज्यादा निर्माण होती है, जिसमें रसवह में और अलग स्रोतस, प्रत्येक स्रोतस में ताम्र भस्म का काम यह अलग होता है। मज्जावह स्रोतस में यह मेरे अनुसार, यानी यह कहीं पे रेफरेंस नहीं, पर मेरे अनुसार ऐसा मुझे लगता है कि मज्जावह स्रोतस में मुख्यतः ताम्र भस्म जो काम करता है वो है कैटलिस्ट का काम। कैटलिस्ट का काम यानी वो वहां तक उसे पहुंचाना और वहां पे बाकी सब द्रव्यों की एक्टिविटी
जो नागभस्म है या फिर खुरसानी ओवा है, ऐसे सब जो द्रव्य है, ऐसे सब जो कल्प है, उसकी एक्टिविटी नर्व पे बढ़ाना, यह ताम्र भस्म का मुख्य रोल रहेगा। न कि ताम्र भस्म की वजह से मज्जावह स्रोतस में हमें उसका डायरेक्ट उपयोगिता नहीं दिखती, क्योंकि उसकी जब भी हम फलश्रुति पढ़ते हैं, तत्त रोग हरानुपान सहितम ताम्रम द्विवल्लोन्वितम तम लीढ़म परिणाम शूलमुदरम शूलम च पांडुज्वरम गुल्म प्लीह कृत क्षयाग्नि सदनम मेहम च मूलामयम दुष्टम च ग्रहणीम हरे ध्रुवमिदम श्रीसोमनाथम मिदम। और इसीलिए यह ताम्र की जब भी हम फलश्रुति देखते हैं तो इसमें हमें 3 स्रोतस का, मुख्यतः 4 स्रोतस का क्या कहते हैं, रेफरेंस, यह हमें इसमें दिखता है, जिसमें प्राणवह है, रक्तवह है, रक्तवह है और अन्नवह है। यह चारों स्रोतस में ताम्र भस्म का क्या कहते हैं, व्याप्ति, यह ताम्र भस्म की निश्चित यह चारों स्रोतस में है। तो इसीलिए ताम्र भस्म की जब हम इस्तेमाल करते हैं, तभी ये इतने सारे रोगों को हम 4 स्रोतस में यह बाइफरकेट कर सकते हैं। और वह 4 स्रोतस में अगर हमने बाइफरकेट किया तो हम उसको काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसीलिए ताम्र भस्म को जब भी हमें इस्तेमाल करना है, तभी स्रोत स्पेसिफिक कौन सा है, तो बाद में हम अगर फलश्रुति पढ़ते हैं और बाद में हमने जो पहले कल्प देखे थे, तो यह सभी कल्पों को अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे देते हैं, तो हमारा कंक्लूजन यह सभी में यही आता है कि ताम्र भस्म का इस्तेमाल यह 4 स्रोतस में है। मुख्यतः लेखन यह कर्म है, पर लेखन बल को मेंटेन कर और अग्निवर्धन, यह ताम्र का रोल मेनली हमें दिखाई देता है। अभी हम जब भी व्याधि स्पेसिफिक के बारे में देखते हैं, तो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट है, मेनली यह पित्ताशय में जो होने वाले अश्मरी है, पित्ताशय में जो होने वाली अश्मरी है, यह अश्मरी में 13-14 mm से नीचे की अश्मरी जो रहेगी वह ट्रीटेबल है बाय मेडिसिन। 13-14 mm के ऊपर की ज्यादा रहेगी तो वो बहुत बार इन्फ्लेमेशन और कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट की जाने की संभावना होती है और दवाई से वह ट्रीट होना थोड़ा मुश्किल होता है। पर एक ऐसा अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ कि वो अगर 13-14 mm की अश्मरी रही, 15 mm की अश्मरी रही, पर अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और हमने यह मेडिसिन स्टार्ट किया रखा है, तो पेशेंट को सिम्टमलेस पेशेंट बहुत समय तक रह सकता है, जब तक सिर्फ वो ऑब्स्ट्रक्शन होता नहीं। पर बाकी पेशेंट सिम्टमलेस काफी समय तक रह सकता है, काफी समय तक हम सर्जरी यह अवॉइड कर सकते हैं। 13 mm के नीचे होता है तो बहुत ज्यादा शक्यता है कि वो छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक होके वहां से निस्तरण कर सके, और यकृत स्राव को प्राकृत करना यह ताम्र भस्म का मुख्य काम है। तो इसीलिए इसमें नारिकेल लवण है, ताम्र भस्म है, और उसके साथ त्रिकटु है, बहुत बार इसमें अम्ल रस भी इस्तेमाल, ऐसे सभी रसों का इस्तेमाल यह काफी अच्छा यह कल्प में होता है। तो वैसे ताम्र भस्म का हम इस्तेमाल ऐसे गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट में नारिकेल लवण और ऐसे बाकी कल्पों के साथ इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, जिससे हमें उपशय यह जल्दी मिलता है। ताम्र भस्म और उदर यह रोग का भी क्या कहते हैं संबंध यह काफी नजदीक का है। मेनली उदर जब भी होता है तभी या तो हृदय में, या तो यकृत में, या तो मूत्रपिंड में, किडनी में जैसे विकृति होती है। यह तीनों कारणों से उदर जनरली होता है। उसमें जब यकृत इन्वॉल्वमेंट होता है और मेनली पोर्टल हाइपरटेंशन ऐसा जब यह जैसे उसकी वजह से असाइटिस होता है, असाइटिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन की कंप्लेंट रहती है, यह दोनों में ताम्र भस्म यह इस्तेमाल करना यह संयुक्तिक रहता है। परंतु पेशेंट को निराम पित्त या पित्त के
दाह, उष्ण, तीक्ष्ण ऐसे गुण सिर्फ बड़े नहीं होने चाहिए। तो बाकी सभी कंडीशन में, कफ वात कंडीशन में मेनली ताम्र भस्म यह उदर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में कहा है, तत्त रोग हरानुपान सहितम, यानी गोमूत्र के साथ, या फिर ताम्र भस्म को के आरोग्यवर्धिनी जैसे कल्प है वह वर्धमान मात्रा में इस्तेमाल करके भी उदर में इसका उपयोग यह काफी अच्छा होता है। और ताम्र भस्म को कुटकी या आरगवद ऐसे द्रव्यों के साथ अगर हम मिक्स करके पेशेंट को देते हैं तो रेचन इफेक्ट जो यह द्रव्यों का है, तो उसमें ताम्र को का मेन रोल वह दोषों को खींचकर बाहर निकालना, यह मेन रोल ताम्र का हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए यह ताम्र का उपयोग ज्यादा अच्छा होता है। अर्श में अग्निमांद्य यह मुख्य से होता है और इसी से अर्श की संप्राप्ति की शुरुआत होती है। ताम्र यह लक्षण उपशमनार्थ अर्श में इस्तेमाल नहीं करते, यानी पेशेंट को हिमोरॉइड है, पेन है, वहां पे एक्टिव ब्लीडिंग है, तो ऐसे समय पर ताम्र भस्म का कुछ भी उपयोग नहीं होता है। परंतु वह एक्टिव फेज खत्म होने के बाद जब भी हम व्याधि की चिकित्सा करते हैं, वह संप्राप्ति भंग करने की जब प्रयत्न करते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिक शुष्क अर्श में जहाँ पे शूल अधिक रहता है, स्तंभ अधिक रहता है, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं रहता है, तो ऐसे समय पर ताम्र भस्म का रोल यह काफी अच्छा होता है। ऐसे समय पर ताम्र भस्म युक्त अर्शकुठार रस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इतने सारे कल्प ताम्र के हैं तो हर समय हर एक कल्प हमारे ओपीडी में हो सकते ऐसा नहीं है। तो अगर हम हमारे मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें वह मेडिसिन में ऊटज, वह मेडिसिन में बिल्व, वह मेडिसिन में चित्रक, वह मेडिसिन में पाठा, ऐसे सभी के साथ अगर हम ताम्र भस्म का इस्तेमाल करते हैं तो वह ताम्र भस्म का उपयोग यह काफी अच्छा अर्श में संप्राप्ति भंग करने के लिए होता है। लक्षण उपशमनार्थ पेशेंट का उपयोग ताम्र भस्म में नहीं होता है। ग्रहणी यह बहुत ही महत्व का विषय ताम्र भस्म में उपयुक्त होता है, और वह ग्रहणी में ताम्र भस्म यह मेनली जब भी मुहुर्बद्ध मुहुर द्रव ऐसा जब भी यह मोशन पेशेंट का रहता है और यकृत स्राव और यह सब प्राकृत नहीं रहते, पेशेंट को शुद्धा मांद्य होता है, तो वह ऐसे समय पर ताम्र भस्म युक्त पंचामृत परपटी यह इस्तेमाल करना काफी महत्व का हो जाता है। यह इस्तेमाल करने से वह यकृतस्राव प्राकृत होते हैं, और यकृतस्राव प्राकृत होने की वजह से धीरे धीरे अग्निदीपन होता है, यानी ताम्र का यहाँ पे रोल अग्निवर्धन ऐसा भी है, और दोष निस्तरण, स्क्रैपिंग और दोष को निकालने के इसमें ताम्र भस्म यह स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है, जिसमें सामता के लक्षण में भी ताम्र भस्म यह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्नवह स्रोतस में जैसे हमने देखा कि अम्ल पित्त जैसे व्याधि में, ताम पित्त जैसे व्याधि में हम ताम्र भस्म का इस्तेमाल काफी अच्छा कर सकते हैं। फेमस कल्प सूचशेखर रस हमें पता है, लीला विलास हमने देखा, यह सब ताम्र भस्म यह इसी कारण ताम पित्त पाचनार्थ यह ताम्र